محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں. دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے. تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر. کسانوں کی سہولیات کے لیے دھان خریدی مرکز کا افتتاح. دھرنی پورٹل میں اپنے تفصیلات کا اندراج و سروے کے کاموں کا جائزہ. وہ کئی ترقیاتی کاموں کا آغاز. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا مصروف ترین دورہ. پی یو سی کمیٹی چیئرمین و آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی کے ہاتھوں مامڑی پلی شمشان گھاٹ کا افتتاح. وہ مختلف ترقی یافتہ کاموں کا آج کیا آغاز. سماجی خدمت گزار قائد یاسین صابری کا سانحہ ارتحال. ان کی حیات زندگی و کارناموں پر مختصر رپورٹ. مسجد کلیکٹریٹ کی بازیابی و خلیل سرائے کی وقف اراضی کے تحفظ میں مسلم وقف پروٹیکشن کمیٹی کی بڑی کامیابی. جو سالوں میں نہیں ہوا وہ مہینوں میں ہو گیا. ابھی بھی کام جاری. ذمہ داران کا بیان. پولیس کمشنر کارتکیہ کی ہدایت پر ٹاسک فورس کے دھاوے. غیر مجاز ریت منتقل کرنے والی 6 ٹپر ضبط. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. آرمور حلقہ اسمبلی کی ترقی ہی میرا اولین نصب العین ہے. آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی. آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین نے دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد ماکلور منڈل کے مامڑی پلی شمشان گھاٹ کا افتتاح عمل میں لانے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آرمور حلقہ اسمبلی کی ترقی ہی میرا نصب العین ہے. اسی لیے 60 سال میں نہ ہونے والی ترقی کو صرف 6 سال میں مکمل کیے جانے کا انکشاف کیا اور کہا کہ سی ایم کے سی آر کی جانب سے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی ترقی کے لیے کوششیں کیے جانے کا انکشاف کیا. اس پروگرام میں پی یو سی چیئرمین آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی، ٹی آر ایس قائدین و کارکنان نے بھاری تعداد میں شرکت کی. یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ نظام آباد نہیں بلکہ ریاست کے مشہور و معروف سیاسی و سماجی قائد یاسین صابری اب ہمارے درمیان نہیں رہے. ان کی سماجی سیاسی زندگی پر مختصر رپورٹ. یاسین صابری یہ نام ایک جہد کار کا ہے جنہوں نے صرف عوام کے حق کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی. ابتدائی دور سے ہی عوامی خدمت کے جذبے سے سرشت تھے اور سماجی خدمت گزار کی حیثیت سے کئی فلاحی کام انجام دیے. اسی طرح 1987 میں انہوں نے اس وقت مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر کی حیثیت سے علاقے مجاہد نگر و ہاشمی کالونی سے منتخب ہوتے ہوئے کئی مثالی کارنامے انجام دیے. ان کی قیادت میں پہلی بار مسلم سلم بستیوں میں برقی سربراہی اور پانی کی سہولیات فراہم کی گئی. اس وقت مجلس کے 6 سے 8 کارپوریٹرز نے انتخابات میں فتح حاصل کی تھی جن میں نظام آباد کے سینئر صحافی مرحوم فرید تبسم صاحب بھی شامل تھے. وہ 25 سے 30 سال تک مجلس سے وابستہ رہے. اس دوران ان کے ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر صاحب سے اچھے روابط رہے جو اس وقت ٹی ڈی پی میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے. اور جب کے سی آر صاحب نے تلنگانہ کا خواب دیکھا اور اس خواب کی تکمیل کے لیے ٹی آر ایس پارٹی کے قیام کے مقصد سے ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا تو اس اجلاس میں شامل ہونے والے ریاست کے اہم ترین اشخاص میں یاسین صابری بھی موجود تھے اور اس وقت سے آج کی تاریخ تک بھی وہ ٹی آر ایس سے وابستہ رہے. تحریک تلنگانہ کے دوران کئی تکالیف برداشت کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ٹی آر ایس کا دامن نہیں چھوڑا اور ان کی پرجوش تقاریر ہر بار پارٹی کے نوجوان قائدین و عوام کو مجبور کر دیتی تھی کہ وہ ٹی آر ایس کی تائید کرے. اور جب ایک بار ایم ایل اے انتخابات میں شہر میں بی جے پی اور ٹی آر ایس نے متحد ہو کر انتخابات
इंतखाबात में हिस्सा लिया था, तो कहा जाता है कि इन्हीं की पुरजोश तकारीर के दम पर एंडिला लक्ष्मी नारायणा को मुस्लिम वोट हासिल हुए और इन्होंने इंतखाबात में जीत हासिल की। और जब आज टीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना हासिल करने के बाद तकरीबन 6 साल का अरसा गुजरने के बाद भी इन्होंने पार्टी से किसी पोस्ट की उम्मीद न रखते हुए अपने खिदमत जारी रखा। रियासती वज़ीर आला केसीआर साहब जब भी जिले को आते तो हजारों की तादाद में भी इन्हें अपना नाम लेकर अपना दोस्त कहा करते और खुसूसी मुलाकात किया करते थे। और आज इनके इंतकाल के मौके पर पार्टी कायदीन व शहर की अवाम ने भी अफसोस का इजहार किया। वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की कामयाब नुमाइंदगी अहम अराजी को हासिल करने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड के अहकामात, वक्फ इंस्पेक्टर साजिद का सहाफती बयान। शहर में वक्फ अराजी की हिफाजत के लिए चंद यौम कबल ही वक्फ प्रोटेक्शन एंड मुस्लिम प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से एक कुल जमाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी सदारत हाफिज लई खान कर रहे हैं। और एक मुख्तसर वक्फे के दौरान इनकी कामयाब रहनुमाई के सबब आज शहर के 2 अहम वक्फ अराजी महफूज होने के दहाने पर है, जिसके बारे में जिले वक्फ अफसर साजिद ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि शहर के कलेक्टर दफ्तर में मौजूद मस्जिद के अराजी के लिए इस कमेटी की नुमाइंदगी पर हैदराबाद वक्फ दफ्तर से अहकामात आ चुके हैं। इसी तरह खलील सराय अराजी पर कब्जों को खत्म करने और इनको किराएदार बनाने के लिए कार्रवाई का आगाज हो चुका है। मुंतकिल हुआ बल्कि यहाँ से एक सेल्फ स्टाइल वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी मौलाना रईस साहब की क़यादत में वहाँ पे हैदराबाद आई, तो वो लोग सीईओ साहब चेयरमैन साहब से मस्जिद के फिर से आबाद करने के लिए बात की है। तो मुझे सीईओ साहब चेयरमैन साहब भी बुलाए और उसके बाद वो लोग इनके रिप्रेजेंटेशन में मेरे से भी पूछे ये मुहिम चल रही है, तो उस पर सीईओ वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर साहब को एक लेटर दिए हैं। तो कलेक्टर साहब को आज वो लेटर दिया गया है मस्जिद के ताल्लुक़ से। कलेक्टर साहब इंशाल्लाह फाइल देख के उसमें जो भी सूटेबल एक्शन है लेंगे। उसके अलावा चेन्नई माल के बारे में भी जो वक्फ खाजी सराय पे नाजायज़ कब्ज़ा है उसका भी सीईओ साहब चेयरमैन साहब के इनमें लाया गया है और फ़ौरन जो है सो उसके जो भी इलीगल इंक्रोचर ने बिल्डिंग बनाया, माल बनाया, उसको फ़ौरन तलब किया जा रहा है। और उनके रिकॉर्ड देखने के बाद इंशाल्लाह रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के फेवर का रहेगा। उसको जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मामलात करते हैं उसको वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाएंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के हाथों बालकुंडा हल्का असम्बली में धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आज हल्का असम्बली बालकुंडा में वाक़े वेलपुर गांव कोमनपल्ली में मार्केट कमेटी के ताउन से धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि जिले में 444 खरीदी मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें से 100 खरीदी मराकज हल्का असम्बली बालकुंडा में मौजूद है। किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। किसानों के खरीदी गए धान की रकम की इजराई अमल में लाने के भी अहकामात जारी किए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत से 50 लाख मेट्रिक टन धान हासिल होती है। इसी तरह आंध्र प्रदेश से सिर्फ 18 लाख मेट्रिक टन धान फराहम होती है। आंध्रा के मुकाबले तेलंगाना रियासत में किसान अपनी फसलों को बेहतर अंदाज में लगाते हुए रकम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर किसानों ने खरीदी धान की कीमतों पर हुकूमत का ताउन जरूरी है, जबकि कोरोना वबा की वजह से किसान परेशान हाल है, जिसके लिए हुकूमत किसानों के लिए ज़ायद कीमतों पर धान खरीदने का मुतालबा किया। కొనుగోలు కేంద్రం సక్సెస్ కావాలి, రైతన్నలకు బాగా ఉపయోగపడాలి। తొందరగా నేను అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి కూడా ఇప్పుడు మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఈసారి మనకు మొన్ననేమో హమాలీల ఇబ్బంది, ట్రాన్స్పోర్టర్ల లారీల ఇబ్బంది ఉండే ఎక్కువ, ఈసారి ఆ ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి కొనుగోలు సెంటర్ వారీగా లారీలను ఇప్పుడే మొదలే నంబర్లతో సహా మ్యాపింగ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ నందిగల్లి కొనుగోలు సెంటర్కి 25 లారీలు డెడికేటెడ్ 20 లారీలు ఇక్కడనే పెట్టాలి, అవి వేరే దగ్గరకు పోవద్దు, నంబర్లతో పాటు ఇవ్వాలి, మ్యాపింగ్ చేయండి। వీళ్ళని ఒక్కొక్క లారీ ఏ రైస్ మిల్లుకు పోవాలన్నా కూడా టైఅప్ చేసేయండి, మరి మళ్ళీ వేరే రైస్ మిల్లుకు పోవద్దుగా జియో ట్యాగ్ చేయాలి। मस्जिद कलेक्ट्रेट के उसूल में वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद की कामयाब पेशरफ्त। मस्जिद कलेक्ट्रेट के उसूल में वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद की कामयाब पेशरफ्त जारी है। प्रोटेक्शन कमेटी के वफद ने कल जहां चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और सीईओ सैयद कासिम से मुलाकात करते हुए इस मुतालबे को इल्म में लाया था। आज जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए वक्फ अहदेदारों की प्रोसीडिंग कॉपी हवाले की बातज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सदर वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि बहुत जल्द कलेक्टेड मस्जिद वक्फ
वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी जाएगी। मस्जिद के तमाम दस्तावेजात को वक्फ इंस्पेक्टर निजामाबाद के जरिए जिले कलेक्टर के हवाले कर दिए गए हैं। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि कदीम कलेक्ट्रेट की यहां से मुंतकिली की रोजनामा मोमेंट टाइम्स में खबरें शाये होने के बाद यहां पर वाक़ई मस्जिद के उसूल के लिए मुहिम का आगाज किया गया। अल्लाह के फजल करम से वक्फ बोर्ड जिले इंतजामिया से कदीम मस्जिद को हासिल करने के लिए कमर बस्ता हो चुका है। 2 दहाई कबल कदीम कलेक्ट्रेट में वाक़ई मस्जिद के उसूल में नाकामी हाथ आई थी, लेकिन इस मरतबा कदीम कलेक्ट्रेट की इमारत को जदीद इमारत में मुंतकिल किया जा रहा है। दशहरा त्यौहार के मौके पर ही कलेक्ट्रेट मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन नागुज़ेर वजूहात की बिना पर दीपावली के मौके पर जदीद कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। इस दौरान वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी निजामाबाद में मस्जिद के उसूल के लिए कोशिशों को तेज करते हुए आला सतह पर नुमाइंदगी और तवज्जो मजबूल कराने के बाद कामयाब पेशरफ्त हो रही है। वक्फ बोर्ड की मदाखलत और जिले कलेक्टर को दस्तावेजात हवाले किए जाने के बाद मस्जिद की अराजी की निशानदही और उसूल में बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। हाफिज मोहम्मद लई खान ने वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की कलेक्टेड मस्जिद के उसूल के लिए जारी मुहिम में तमाम उम्मत मुसलिमा से वाबस्ता होने की पुरखुलूस अपील करते हुए कहा कि अल्लाह के घर की दोबारा यहाँ पर असर नो तामीर अमल में लाते हुए पंचगाना इबादतें की जाएगी। जनरल सेक्रेटरी मिर्जा अफजल बेग ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की जानिब से कलेक्टेड मस्जिद के उसूल के लिए चलाई जा रही मुहिम में अल्लाह ताला की मदद शामिल है। प्रोटेक्शन कमेटी को हर कदम पर कामयाबी हासिल हो रही है। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, नायब सदर एम.ए. क़य्यूम भी मौजूद थे। एक हफ्ता कबल कलेक्टर साहब को मस्जिद कलेक्ट्रेट के तमाम तर दस्तावेज़ात हवाले किए थे। कल निज़ामाबाद मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन की जानिब से CEO तेलंगाना और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को मस्जिद कलेक्ट्रेट की याददाश्त उनको पेश की गई बाजियाबी के लिए। CEO साहब ने कलेक्टर ज़िला निज़ामाबाद के नाम अहकामात जारी करते हुए मस्जिद कलेक्ट्रेट को फ़ौरन हवाले करने के लिए उन्होंने एक प्रोसीडिंग और एक आपने CEO की जानिब से एक तहरीरी कॉपी आई है, जिसको हमने आज वक्फ इंस्पेक्टर साहब के ज़रिए से कलेक्टर साहब के हवाले किया है। इंशाअल्लाह अनक़रीब उसका दौरा करते हुए मस्जिद कलेक्ट्रेट के ऊपर उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर सरकारी तौर पर और ये जितने ऑफिशियल लोग हैं उसका मुआयना करेंगे और वक्फ बोर्ड CEO साहब को इसकी ओर रिपोर्ट देंगे कलेक्टर साहब के ज़रिए से। इंशाअल्लाह इम्कानात ऐसे है कि बहुत जल्द मस्जिद कलेक्ट्रेट वक्फ बोर्ड के हवाले हो जाएगी और उसके लिए जद्दोजहद जारी है। हम तमामी लोगों से ये ख्वाहिश करते हैं कि वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी जो अवकाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, उसमें सबसे पहले मस्जिद कलेक्ट्रेट की आवाज़ उठाई गई है। उसकी बाजियाबी के साथ साथ दीगर जो अवकाफ़ी कीमती अराज़ी है और कीमती जायदादें हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमामी लोग वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी का ताउन करें और जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम जो CEO साहब ने जो आर्डर दिया है उस पर इसलिए चाह रहा था कि मुसलसिल 5-6 घंटे की जद्दोजहद के बाद हमारे CEO साहब और चेयरमैन साहब ने एक मीटिंग कॉल कर फौरी तौर पर एक जो है सो प्रोसीडिंग जारी किया है। हम CEO साहब का और जो है सो चेयरमैन साहब के भी मशकूर और ममनून हैं, क्योंकि उन्होंने कल जाने के बाद हमारे को इस बात का तयक़ुन दिया और फौरी तौर पर जो है सो एक मीटिंग कॉल की कलेक्टर हमारे इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में, और इंस्पेक्टर साहब ने भी तमाम दस्तावेज़ उनको चेयरमैन साहब को और CEO साहब को बताया। उसके बाद चेयरमैन साहब और CEO साहब ने मिलकर एक प्रोसीडिंग जो है सो देने के लिए कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कल वो प्रोसीडिंग इंस्पेक्टर साहब को दी गई थी, जो आज कलेक्टर साहब के पास पेश की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत हमारे लिए बहुत खुश आइन बात है और ना ही हमारे लिए बल्कि सारे निज़ामाबाद के मुसलमानों के लिए एक खुश आइन। टास्क फोर्स के धावे जारी, गैर मजाज रेत मुंतकिल करने वाली 6 टिप्पर पकड़ ली गई।
निजामाबाद शहर और जिले में टास्क फोर्स के धावे जारी है। एड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में MSC फोरम के इलाके से रेत की गैर मजाज मुंतकिली की इत्तला मिलने पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात पर निजामाबाद टास्क फोर्स टीम ने धावा करते हुए 6 टिप्पर गाड़ियां पकड़ ली और मुतालिका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। टास्क फोर्स सर्कल इंस्पेक्टर शाकिर अली ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ मुसलसल चौकसी अख्तियार की जा रही है। इन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश करते हुए कहा कि आसपास गैर कानूनी सरगर्मियां दिखाई देने पर पुलिस को इत्तला दे। इत्तला देने वालों के नाम राज में रखे जाएंगे। गैर समाजी व गैर कानूनी सरगर्मियों का खात्मा किया जाएगा। धरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन ने इंदलवाई मंडल के तिरमनपल्ली वेंगल यार्डो में धान खरीदी मरकज का किया इफ्तिताह। धरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन ने इंदलवाई मंडल के तिरमनपल्ली वेंगल पाड़ू में धान अनाज खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। आप तमाम किसानों की जानिब से काश्त करदा फसलों की ज़ख़ीरे को हुकूमत बेहतर कीमत यानी एक किस्म की पैदावार पर 1888 रुपये फी कुंटल अकल तरीन इमदादी रकम देगी, जबकि B ग्रेड की पैदावार के लिए फी कुंटल 1868 रुपये इमदादी रकम देने के लिए कहते हुए कहा कि हुकूमत एक अहम मंसूबा बंदी के तहत किसानों को होने वाली परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत की एजेंसियों के जरिए मौजूदात में किसानों की तमाम फसलें खरीदने के लिए धान अनाज खरीदी मरकज का क़याम अमल में लाकर काश्तकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन की मदद से तरक्याती स्कीमात को रूबे अमल लाकर तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने के लिए किसानों से वादा किया और इसी तरह से धान हासिल करने के 4 घंटे में ही ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने का इंकशाफ के इस प्रोग्राम में MPP रमेश नायक, MPTC चिंताला दास, DCMS चेयरमैन मोहन और अवामी नुमाइंदों किसानों ने शिरकत की। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर अवाम खामोशी अख्तियार ना करे। हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो दे। शहर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम की तश्कील नागुज़िर। शहर में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम के साथ मुतवस्सित तबके काफ़ी परेशान हैं। चावल, गेहूँ, शक्कर, तरकारियों की कीमतों को कंट्रोल करना और आवाम तक पहुँचाना लाजमी है। होलसेलर्स और रिटेल सेलर्स की जानिब से आवाम को लूटा जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। पब्लिक मार्केटिंग को रोकने में ओहदेदार बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अंडा, चिकन की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत का कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूध कहीं पर 60 रुपये लीटर है तो कहीं 66 रुपये लीटर फरोख्त किया जा रहा है और बाज़ मुल्क सेंटर में खालिस भैंस के दूध के बजाय पाउडर से तैयार करदा दूध, दही फरोख्त किया जा रहा है। बकरे के गोश्त की कीमतों पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। बड़े गोश्त की ताजरीन गैर मियारी 280 रुपये किलो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जबकि शहर से चंद किलोमीटर दूर देहातों में कम कीमत पर मियारी गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि लॉकडाउन में गोश्त ताजरीन की जानिब से बेतहाशा करते हुए अवाम की जेबों पर डाका डाला गया। अब इन लॉकडाउन के बाद बड़े जानवर की कीमत में कमी होने के बाद भी गोश्त ताजरीन की जानिब से कमी नहीं की जा रही है। रिफाइंड ऑयल की कीमत और तमाम दालों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। दालों की बढ़ती हुई कीमत से अवाम को ज़ायद बोझ का सामना करना पड़ रहा है। प्याज की कीमत में बेतहाशा इजाफे से आम आदमी बेहद परेशान है। ईदैन के मौके पर ताजरीन की जानिब से अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर ओहदेदारान खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुजू होने के लिए हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइन जारी की गई थी। अवाम का मुतालबा है कि ओहदेदार मफाद परस्त ताजरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सारिफिन के लिए फौरी हेल्पलाइन जारी की जाए, जिस पर मफाद परस्त और धोखाबाज ताजरीन की इत्तला दी जा सके। शहर के नौजवान कंज्यूमर प्रोटेक्शन तश्कील देते हुए अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर ओहदेदारों की तवज्जो मबजूल कराने के लिए आगे आए और बेईमान और धोखेबाज ताजरीन को सबक सिखाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम की तश्कील अमल में लाए।
शहर निजामाबाद के प्रगति नगर में एक दिलखराज सड़क हादसा, तफसीलात कुछ इस तरह। शहर निजामाबाद के प्रगति नगर में एक भयानक सड़क हादसे में एक खातून बरसरे मौके हलाक, दूसरे शख्स को गहरे जख्म आने की इत्तला मौसूल हुई है। तफसीलात के मुताबिक कोटगिर मंडल मौजे इतुंडा के श्यामला अपने शौहर साइलू के साथ इलामा गुट्टे में सुकूनियत पजीर रहते हुए श्यामला जिंदगी की गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट दवाखाने में खिदमात अंजाम देने के बाद शौहर साइलू के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार अपने घर को जाने के दौरान रेत के ट्रैक्टर से टकराने की वजह से श्यामला मौके वारदात पर फौत। शौहर साइलू जख्मी होने की इत्तला हासिल कर वन टाउन एसआई की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात करने पर मुकामी अवाम के मुताबिक रेत ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही के सबब हादसा होने का इजहार किया गया। मोरताल मंडल के तहसीलदार श्रीधर ने मौजे डोनकल में धान खरीदी मरकज का किया इफ्तिताह। मोरताल मंडल के तहसीलदार श्रीधर ने पीएसीएस चेयरमैन राजेश्वर के हमरा मौजे डोनकल में धान अनाज खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा सहूलतों से तमाम किसानों को इस्तेफादा करने के लिए कहते हुए हुकूमत किसानों को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मरकज का क़याम अमल में लाकर किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को बेहतर कीमत पर हासिल कर रहे किसानों को राहत पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच लावण्या, एमपीटीसी अशोक, मंडल सदर प्रभाकर, पीएसीएस डायरेक्टर संदीप, टीआरएस कायदीन व दीगर अफराद ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल मंडल मौजे तिरमनपल्ली में मुकामी सरपंच वीडीसी की निगरानी में फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को खवातीन की जानिब से जोशो खरोश के साथ मनाया गया। निजामाबाद रूरल मंडल मौजे तिरमनपल्ली में मुकामी सरपंच व वीडीसी की निगरानी में फूलों का त्यौहार बदकमा त्यौहार को खवातीन की जानिब से जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए तमाम खवातीन ने फूलों को रंगने के बाद सही तरीके से जमाते हुए मुकामी खवातीन बदकमा खेल में शिरकत कर नगमे व गीत गुनगुनाते हुए बदकमा खेल के मुकम्मल होने के बाद बदकमा को निमज्जन किया गया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच वीडीसी मेंबर ने बात करते हुए कहा कि मुकामी खवातीन के लिए अहम बदकमा त्यौहार के मद्देनजर इस बदकमा त्यौहार में खवातीन को दिक्कत न होने के लिए गुज़िश्ता 5 सालों से सहूलियात फ्राहम करने पर खवातीन भारी तादाद में शिरकत करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वीडीसी कमेटी मेंबर और यूथ मेंबर व दीगर ने शिरकत की। डिचपल्ली मंडल के मिट्टापल्ली में रामपुर प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम धान खरीदी मरकज का दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने किया इफ्तिताह। डिचपल्ली मंडल के मिट्टापल्ली में रामपुर प्राइमरी ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन आईडीसी चेयरमैन सांबार मोहन ने धान अनाज खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि किसानों को मुकम्मल तौर पर राहत देने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत में धान खरीदारी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाकर धान का ज़ख़ीरा हासिल कर बेहतर कीमत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद ICDS चेयरमैन सांबार मोहन, MPP भूमन्ना, टीआरएस मंडल सदर चक्रकोंडा कृष्णा, रामपुर विंडो चेयरमैन ताराचंद, मिट्टापल्ली सरपंच गणेश और अवामी नुमाइंदों किसानों ने शिरकत की। दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन मोहन ने मौजे मलराम में ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों का लिया जायजा। दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन मोहन ने मौजे मलराम में ज़ेरे तामीर रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए शानदार पैमाने पर मुनाकिद करदा रायतू वेदिका भवन के तामीरी कामों साफ व शिफाफ उम्दा तरीके से दशहरे से कबल अज वक्त तामीर करने का इजहार करने के बाद रायतू वेदिका के इतराफ अवामी नुमाइंदों के हमरा पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में मुकामी MPP अनुषा प्रेम, जेडपीटीसी सुमलता, वाइस MPP साइलू, मंडल रायतू सामान्य समिति सदर गंगारेड्डी, सरपंच नागेश धर्मराम, सरपंच सुनीता राम गोपाल व दीगर ने शिरकत की। प्याज की दरामद के नए कवानीन में नरमी। हुकूमत ने 4 शंबे को 15 दिसंबर तक के लिए दरामदात के कवानीन में तरमीम की है ताकि प्याज को जल्द लाया जा सके। इसका मकसद प्याज की घरेलू सप्लाई को बेहतर बनाना और इसकी रिटेल कीमतों को कम करना है। मरकज वज़ारत उमूर सारिफीन ने एक बयान में कहा कि वो कीमतों पर काबू पाने के लिए खुली मंडी में बफर स्टॉक से मजीद प्याज हासिल करेगी। अंदाज़न 37 लाख टन खरीफ की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई, जिससे बढ़ती हुई कीमतों से राहत मिलेगी। वज़ारत ने बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों में प्याज की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इस अरसे में प्याज की कीमत में फी किलो 11.56 रुपये का इजाफा हुआ, जिससे इसकी रिटेल कीमत
95 रुपये फी किलो हो गई। ये गुज़िश्ता साल की कीमत से 12.13% ज्यादा है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी गैर कारगर, ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के तरीक़ेकार को मुस्तरद कर दिया। अनकरीब इलाज की फहरिस्त से खारिज। कोरोना वायरस के इलाज में अब प्लाज्मा थेरेपी गैर कारगर साबित होने लगी है। कोरोना वायरस के इलाज के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लेने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज मुमकिन नहीं है, जबकि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब ये दावे गलत साबित होने लगे हैं। ICMR की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा के इस्तेमाल के तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हुए इलाज की फहरिस्त से खारिज करने पर गौर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मरकज़ी वज़ारत सेहत को इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट रवाना कर दी गई है और माहिरीन से मुशावरत का अमल जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफे के दौरान रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज को काबिल अमल बनाने के इक़दाम किए गए थे और इब्तिदा में हुकूमत और ICMR ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन के इस्तेमाल के ऐलान के अलावा दुनिया के कई ममालिक को इन अद्वियात के जरिए इमदाद रवाना की गई थी, लेकिन मुसलसल जारी तहकीक के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो मरीज कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद इस मर्ज से ठीक हुए हैं, इनके प्लाज्मा के जरिए कोरोना वायरस का इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है और दुनिया के कई ममालिक में इस थेरेपी पर अमल किया गया, लेकिन बेतदरीज अब प्लाज्मा थेरेपी को भी मुस्तरद किया जाने लगा है। बताया जाता है कि ICMR की जानिब से प्लाज्मा थेरेपी के कोरोना वायरस की फहरिस्त इलाज से इखराज के बाद प्लाज्मा की तलब में कमी वाक़ई हो जाएगी। इथिकन फाउंडेशन की जानिब से फ्री ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप का कामयाब इनेकाद, बड़ी तादाद में अवाम ने हासिल किया इस्तिफादा। इथिकन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से आज बाद नमाज जुम्मा फ्री ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद अवाम में ब्लड डोनेशन के बारे में शऊर बेदार करना है। इसके तहत आज कई अफराद का ब्लड ग्रुप की जांच की गई। इस मौके पर मोहम्मद इरफान पटेल ने कहा कि ये सिलसिला जारी रहेगा और मुख्तलिफ मसाजिद व मनादिर के पास इस तरह के कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा शेखापुर टीम शेख यूनुस पटेल, सरफराज अहमद व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इथिकन फाउंडेशन की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह आज का कैंप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुका है। आइंदा भी हमारे कैंप हर तरह के लगाए जाएंगे, मस्जिद के पास, मंदिरों के पास और जहाँ जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर हम लोग ऐसे कैंप मुनक़िद किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल किए होंगे और जो लोग हमसे नहीं जुड़ सके वो लोग से दरख्वास्त है कि वो हमसे आकर जुड़े ताकि अपना ब्लड ग्रुप आपको मालूम हो सके। जज़ाकल्लाह। दशहरे की तातील 25 अक्टूबर के बजाय 26 अक्टूबर, हुकूमत तेलंगाना। हुकूमत तेलंगाना की महकमा पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने दशहरे की तातील इतवार 25 अक्टूबर के बजाय पीर 26 अक्टूबर 2020 को मुकर्रर की है। महकमा के सर्कुलर में दशहरे की तातील की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया गया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जदीद तौर पर शुरू करदा धरनी पोर्टल के तहत रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपनी गैर ज़रई अराजी का किया इंदराज। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जदीद तौर पर शुरू करदा धरनी पोर्टल के तहत हर मौजे के गैर ज़रई अराजी मालिक अपनी जायदाद की तफसीलात को इंदराज करने की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए जिले निजामाबाद वेलपुर मंडल के मुकाम पर पंचायत के अहदेदारान ने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी के रिहायशगाह पर तशरीफ लाकर अपने जायदाद से मुंसलिक तफसीलात को रियासती वजीर के हमरा दर्ज करवाया। इस प्रोग्राम में DLP श्रीनिवास, पंचायत सेक्रेटरी विनोद व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दशहरा त्यौहार के मद्देनजर विजय डायरी डेवलपमेंट स्टाफ वर्कर्स को डायरी यूनिफॉर्म टी शर्ट की फराहमी अमल में लाई।
शाह निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने दशहरा त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए विजय डायरी डेवलपमेंट स्टाफ व वर्कर्स को डायरी यूनिफॉर्म टी शर्ट की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जिले में दूध की खरीदो फरोख्त में इजाफा करने के लिए अहदेदारान को सख्त मेहनत करने की हिदायत देते हुए कहा कि जिले में भी विजय डायरी पार्लर का क़याम अमल में लाकर तेलंगाना निजामाबाद जिले के किसानों के जरिए हासिल करदा दूध से साफ व शिफाफ अशिया बनाकर अवाम को फराहम करने के लिए कहते हुए डायरी जीएम स्पेशल ऑफिसर साहब ने जिले में 50 विजया डायरी पार्लर का क़याम अमल में लाने पर इजलास मुनक्किद करते हुए मजीद 20 विजया डायरी पार्लर का क़याम अमल में लाने के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तों को तलब किया गया। कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक पीडी, डीआरडीओ और तमाम मुंसलिक डिपार्टमेंट के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। किसानों की सहूलियात के लिए धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह। धरनी पोर्टल में अपने तफसीलात का इंदराज व सर्वे के कामों का जायजा व कई तरक्याती कामों का आगाज। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का मसरूफ तरीन दौरा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों मामड़ीपल्ली शमशान घाट का इफ्तिताह व मुख्तलिफ तरक्याफ्ता कामों का आज किया आगाज। समाजी खिदमत गुजार कायद यासीन साबरी का साने अर्तहाल। इनकी हयाती जिंदगी व कारनामों पर मुख्तसर रिपोर्ट। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी व खलील सराय की वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ में मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी की बड़ी कामयाबी। जो सालों में नहीं हुआ वो महीनों में हो गया, अभी भी काम जारी। जिम्मेदारान का बयान। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया की हिदायत पर टास्क फोर्स के धावे गैर मजाज रेत मुंतकिल करने वाली 6 टिप्पर जब्त। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।